ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। All right, this is the same verse, right? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. So this is the prayer, right, which we do before even reading Bhagavatam. So what we are doing is we are saying is, let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord, who has become the son of Vasudev, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda, and other cowherd men of Vrindavan, and the enliv- enlivener of the cows and the senses. Very beautiful verse, very popular, very famous verse, right? तो इसका purport पढ़ते हैं. Anyone wants to read? यस प्रभु जी, I I can can. read, Prabhuji. ओके माता जी, ओके आप read. Okay. Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord, who has become the son of Vasudev, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda, and the cowherd men of Vrindavan, and the enlivener of the cows in the census. Purport. The Lord, being thus unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy, descends on earth as he is in order to show his special mercy upon his unalloyed devotees, and to diminish the upsurges of the demoniac persons. Queen Kunti specifically adores the incarnation or descent of Lord Krishna above all other incarnations because in this particular incarnation he is more approachable. In the Ram incarnation, he remained a king's son from his very childhood. But in the incarnation of Krishna, although he was the son of a king, he at once left the shelter of his real father and mother, King Vasudeva and Queen Devaki, just after his appearance, and went to the lap of Yashoda Maya to play the part of an ordinary cowherd boy in the blessed Vrajabhumi, which is very sanctified because of his childhood pastimes. Therefore, Lord Krishna is more merciful than Lord Ram. He was undoubtedly very kind to Kunti's brother Vasudev and the family. Had he not become the son of Vasudev and Devaki, Queen Kunti could not claim him to be her nephew and thus address Krishna in parental affection. But Nanda and Yashoda are more fortunate because they could relish the Lord's childhood pastimes, which are more attractive than all other pastimes. There is no parallel to his childhood pastimes as exhibited at Rajbhumi, which are the prototypes of his eternal affairs in the original Krishna lok, described as the Chintamani Dham in the Brahma Samhita. Lord Shri Krishna descended himself at Brajbhumi with all his transcendental entourage and paraphernalia. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore confirmed that no one is as fortunate as the residents of Rajbhumi, and specifically the cowherd girls, who dedicated their everything for the satisfaction of the Lord. His pastimes with Nanda and Yashoda, and his pastimes with the cowherd men, especially with the cowherd boys and the cows, have caused him to be known as Govinda. Lord Krishna as Govind is more inclined to the Brahmanas and the cows, indicating thereby that human prosperity depends more on these two items, namely Brahmanical culture and cow protection. Lord Krishna is never satisfied where these are lacking. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So अभी prayers का topic चल रहा है, right? So again we'll touch upon little bit on the prayers aspect. So prayers कौन कौन से कैसे कौन कौन से तरीके से प्रेयर्स होती है, राइट? तो हमने पहले भी पढ़ा था दैन्य बोधिका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रेयर्स होती हैं, बट अभी ऊपर जो प्रेयर्स करी थी वो काइंड ऑफ फॉरगिवनेस के मूड में थी
कि मैं वुमेन हूँ, सॉरी मुझे माफ कर देना, वी कैन नॉट सी यू, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए एंड स्टफ लाइक दैट. नाउ शी इज कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ prayers, which is praising. Now she is praising Lord Krishna, right? I pay your obeisances, respectful obeisances. किसको? You are son of Vasudev, right? You are son of a king. You are pleasure of Devaki. Right now she is praising, right? And then comes the thanking part. Okay, we pray to Krishna by thanking him. Okay, whatever he has given to us in gratitude, right? And then if we want to ask something or कुछ मांगना है अगर, so that comes later. Right. So before we ask the Lord for something, better go through this order, right? उनसे थोड़ी बात करो, थोड़ी प्रेज करो, ठीक है, उनसे फॉरगिवनेस करो, उनको थैंक यू बोलो जो अब तक दिया है, फिर अपनी आगे जो हमने मांगना है वो मांगो. राइट. अगर सीधा हम क्या करते हैं जाके, अच्छा कृष्णा ये देना जरा, ठीक है, जैसे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, और बड़े चौड़े होके लेते हैं कि हाँ हम डेमिगॉड्स के पास थोड़े ना जा रहे हैं, अब तो आपके पास ही आ रहे हैं, हमें पता है आप आपसे ही लेना है, तो दो अब. राइट. क्योंकि हमें इतना तो फिलोसफी पता चल गया है कि भगवान कृष्ण से ही मांगना है, कर्म कांड करके इधर उधर से नहीं लेना है. बट कृष्णा से भी मांगने का एक तरीका है, राइट? सीधा तुम मांगोगे दे तो फिर भी देंगे ही वो, आई डोंट से कि वो नहीं देंगे. बट दिस इज हाउ वी शुड डू, लर्न फ्रॉम जो एग्जॉल्टेड वैष्णवाज हैं, कुंती महारानी हैं, और आगे भी प्रेयर्स आएंगी, ब्रह्मा है, हाउ दे प्रे, राइट? लर्न फ्रॉम देम. जनरली क्या होता है कि प्रेयर्स वाले जो सेक्शंस है ना, उनमें बंदे को लगता है कि बोरिंग है, छोड़ो यार, सीधा कहानी पे आओ, सीधा मुद्दे पे आओ, कहानी सुननी अच्छी लगती है, पास टाइम सुनने अच्छे लगते हैं, प्रेयर्स के पार्ट्स को जनरली बंदा स्किप कर देता है. बट शिला प्रभुपाद बोलते थे कि सॉरी, कि ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना श्रीमद् भागवतम का, इट्स के वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, फॉर द फाइनल. फाइनल हमारा डेस्टिनेशन क्या है, होना है डेथ की. वैष्णव बोलते हैं कि वो वेट कर रहा होता है डेथ की. उस दिन जय सची प्रभु मिले, उन्होंने, मित्र प्रभु आपके सामने कितनी बार उन्होंने बोला कि आई एम वेटिंग फॉर कृष्णा टू कम एंड टेक मी. इवन आई वाज, 4 बार उन्होंने बोला, चौथी बार मुझसे ही नहीं सुना गया. मैं क्या प्रभु आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा है. आई मीन ही इज वेटिंग फॉर हिज डेथ, कैन यू इमेजिन? विद इन 1 आवर, 1 आवर भी नहीं, आधे घंटे में उन्होंने 4 बार बोल दिया कि आई एम वेटिंग फॉर कृष्णा टू टेक मी, आई एम वेटिंग फॉर कृष्णा टू टेक मी. सो बेसिकली डेथ इज द थिंग विच अ वैष्णव इज वेटिंग फॉर, बिकॉज ही हैज प्रिपेयर्ड. कुंती महारानी प्रेयर्स, गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स, ब्रह्म संहिता प्रेयर्स. प्रभुपाद काफी इंसिस्ट करते थे कि, मेरी आवाज ठीक आ रही है? मेरे को कनेक्शन इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा था. बीच में थोड़ा कट गया था तो कट गया था, हाँ. तो प्रभुपाद वॉज इंसिस्टिंग कि हमें ये जो प्रेयर्स हैं, कुंती प्रेयर्स और ये सब, वी शुड लर्न देम बाय हार्ट. इवन दो हमें वो कुंती महारानी जैसे इमोशंस इस जन्म में, मेरे तो नहीं आएंगे, बाकियों का नहीं मैं कह सकता, उस लेवल के इमोशंस तो चाहे नहीं आएंगे, उस लेवल का प्यार भी नहीं होगा, राइट? अभी तो नहीं है. बट स्टिल, स्टिल वी शुड प्रे, इसको याद करके वी शुड कीप ऑन चैंटिंग द प्रेयर्स, ताकि जब हमारा एंड टाइम आए, तब हमारे मुंह से ये प्रेयर्स निकले ऐसे, वो बॉलीवुड के गाने नहीं निकले. ठीक है, अभी भी वो 90s के गाने जो हम, जिसमें जो सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, अभी भी मैं बोलूंगा वो सबको आते होंगे, एटलीस्ट एक एक पैराग्राफ तो आता होगा, एक एक छंद तो आता होगा उसका, है ना? आता होगा ना? कोई दिन यही कभी तो लोग. रिपीट भी हो जाते हैं। हाँ. कोई कोई दिन यूट्यूब पे रिपीट भी होते हैं। हाँ, ठीक है ना, वो भी आ जाते हैं. और कई बार दिल भी करता है एक्चुअली सुनने का, यू आर राइट. तो कई बार क्या होता है, गाड़ी में तो वो पेन ड्राइव लगी हुई है हरे कृष्णा महामंत्र की, एक निकलती है दूसरी लग जाती है ऑलवेज. बट कई बार अविराज वो उस पे ना वो रेडियो वाला बटन दबा देता है, पॉप देसी वाला, तो उसमें बॉलीवुड गाने में वो भी सुन लेता है बंदा, बंदा कहता है चलो यार थोड़ा सा लगा दिया तो सुन लेते हैं. सो वो इतना ज्यादा हमने वो सुना हुआ है कि उसको याद करने में हमें एफर्ट नहीं लगी हुई है, क्यों? उसमें दिल लगा हुआ था. बट इसमें हमें एफर्ट लगेगी, बट एफर्ट विल बी वर्थ वाइल, कि एंड टाइम में वो हमारे काम आए. जैसे वो पास्ट इंप्रेशंस है ना, वो अपने आप उभर के आ जाते हैं सामने, उसे हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती.
तो ऐसे ही जब प्रेज करते हैं तो कृष्णा ऑल्सो बिकम्स हैप्पी। तो अभी इसीलिए कुंती महारानी क्या कर रही है, प्रे कर रही है। ठीक है। तो जब कोई हमें ग्लोरीफाई करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। वही बोलते हैं ना, कहते रहो अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो वही चीज है, अब कृष्णा को भी तुम अगर ग्लोरीफाई करोगे उनको भी अच्छा लगेगा। ही इज ऑल्सो अ पर्सन। ठीक है। तो अब उसी वे में अब वो कृष्णा को बेसिकली शी इज नमन, नमो नमः। नमो नमः, शी इज नमन कर रही है कृष्णा को। कैसे कर रही हैं, बाय हिज, उनके नाम लेके। ये सारे उनके नाम है। वासुदेवाया, वासुदेवाया सन ऑफ वसुदेव, देवकी नंदनाया सन ऑफ देवकी, नंद गोप कुमाराया, ठीक है, नंद एंड काउहर्ड मैन के बच्चे, ठीक है, गोविंदाया, गोविंदा, गोविंदा का आगे क्या नाम है, काउज एंड सेंसेस पे। तो उनके टास्क के हिसाब से उनको वो उनके नाम ले रही है। राइट। सो अब कृष्णा, सबसे पहले इसमें कौन सा वाला वर्ड आया है, कृष्ण आया। अब इतने सारे नामों में से सिर्फ कुंती महारानी क्या कह रही है कि कृष्ण इज द टॉप मोस्ट। वाई? बिकॉज जो रेसिप्रोकेशन कृष्णा के साथ हो सकती है वो किसी भी और इनकारनेशन के साथ नहीं हो सकती। कुंती, क्वीन कुंती स्पेसिफिकली adores the incarnation or descent of Lord Krishna above all other incarnations। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो पहले भी आया था है ना, फर्स्ट कैंटो हमारे आ चुका है। एक तो कृष्णा स्वयं भगवान है, एंड सेकेंडली जिस तरह जितने अप्रोचेबल लॉर्ड कृष्णा है, हर एक गोपाओं को, गोपियों को कितने अप्रोचेबल है वो, कितने इजीली हर एक की इच्छा पूरी करी है, ये हमें पता है। लॉर्ड राम में भी, हालांकि वो ह्यूमन लाइक पास टाइम था, बट स्टिल ही वॉज अ किंग एंड ही रिमेन्ड अ किंग राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ऐसा नहीं है कि वो कुछ वो बन गए, वो किंग ही थे। इवन जब वो वनवास भी कर गए तब भी उन्होंने अयोध्या के किंग ही थे वो, क्योंकि उन्होंने उनकी, जब भरत महाराज आए थे तो उन्होंने उनकी उनकी चप्पलें लेकर वो वहां पर रख दी थी उन्होंने, अ, उनके सिंहासन पर। सो ही वॉज स्टिल अ किंग, एंड सो ही कुड नॉट रेसिप्रोकेट। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, जैसे कृष्णा के कितने सारे फ्रेंड्स थे उनके, गिने चुने, एक सुग्रीव फ्रेंड था, एक दो और फ्रेंड्स थे, दैट्स इट। वाइफ उनकी एक, राइट। और माता पिता भी उनके एक। अब कृष्णा के एवरीथिंग मल्टीपल। आप कहोगे माता पिता कैसे मल्टीपल, एक तो देवकी और ये हो गए वसुदेव, दूसरा नंद यशोदा हो गए, तीसरा जब वो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी उसमें वो कृष्णा खुद ही सभी गोपाओं के रूप में चले गए थे उनके घर पे। ये पता है ना सबको पास टाइम। तो ही reciprocated with each and every one of Brajvasi as their parents because he became their son। जब एक्चुअल में ब्रह्मा ने वो ले लिए थे बच्चे बाकी, तो ही फॉर्म देयर रूप, है ना, तो उनके रूप में आके वो सबके घर में गए थे। तो सबको, और हमें सराहनियां तो उनकी पता ही है, 16,108। सो जिस लेवल की रेसिप्रोकेशन कृष्णा ने करी है, नो वन एवर डिड। दैट्स व्हाई शी इज सेइंग कृष्णाया, राइट। देन कम्स द वासुदेवा। अब वो कह रही है कि वसुदेव इज माय ब्रदर, सो ही इज वेरी लकी कि उनके हृदय में तुम्हारा वास हुआ है। तो कृष्णा इज नॉट, कृष्णा हमें पता है ना कि वो नॉर्मल बर्थ जैसे होता है वैसे नहीं उनका बर्थ हुआ। ही एंटर्ड इनटू द हार्ट ऑफ वसुदेव, एंड फ्रॉम हिज हार्ट ही एंटर्ड इनटू द हार्ट ऑफ देवकी। सो कितना, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हार्ट में, हमारे दिल में भगवान आ जाए, राइट, बट 1% भी नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर वसुदेव के हृदय में वो आ गए, दैट्स व्हाई ही सेइंग वसुदेव माय ब्रदर इज वेरी लकी। देन ही सेइंग इज द प्लेजर ऑफ देवकी। नाउ फ्रॉम उनके तो हार्ट में आए, उनकी तो पूरी बॉडी ग्लो करने लग गई थी देवकी की, जब अंदर थे। और बहुत सारे डेमी गॉड्स इवन दर्शन करने आते थे देवकी माता के, कि उनके गर्भ में वो थे, कृष्णा थे। सो अगेन देवकी नंदनायचन, देन नंद महाराज और वृंदावन के और गोप गोपियां आर इवन मोर फॉर्चुनेट, बिकॉज उन्होंने तो सिर्फ बर्थ ही दिया था, उधर तो जो उन्होंने पास टाइम्स किए हैं,
जो आगे वही बोल रहे हैं ना कि जो पास टाइम्स किए हैं, पैटर्न पेरेंटल अफेक्शन जो उन्होंने शो करी है, वो तो एटर्नल जो वहां पर होती है, जो एक्चुअल गोलोक वृंदावन में होती है, वो पास टाइम का रेप्लिका वो किया उन्होंने यहाँ पे, विच इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स। तभी बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में मेंशन्ड है कि अगर कोई बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है और मान लो उसके सब कुछ कर्म खत्म हो गए, सब कुछ एवरीथिंग खाता बंद है यहाँ का मटेरियल वर्ल्ड का, then he takes part in these affairs, not in actual Golok Vrindavan, but wherever they are happening in the material world, just as a practice. And then finally he goes to the actual Golok Vrindavan. So एक बार प्रैक्टिस करेगा वो रेप्लिका में, then he will go to the actual Golok Vrindavan। प्रैक्टिस ठीक है। समझ में नहीं है। प्रैक्टिस करेगा इन द सेंस क्या? अब मान लो आपका इस बर्थ में आपके सारे कर्म कट गए, एवरीथिंग, यू आर एलिजिबल टू गो टू गोलोक वृंदावन, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो गया, बट स्टिल यू विल नॉट गो डायरेक्टली टू दैट गोलोक वृंदावन जो कि वैकुंठा से ऊपर है। यू विल स्टिल टेक अनदर बर्थ इन वृंदावन वेयर एक्चुअली कृष्णा के पास टाइम हो रहे होंगे, अभी भी एट एट दिस मोमेंट कृष्णा के पास टाइम किसी ना किसी यूनिवर्स में हो रहे हैं, इन द मटेरियल वर्ल्ड, राइट, किसी और ब्रह्मा के अंडर। सो कोई और यूनिवर्स में। हाँ, लाइक द वे अब हम हमारी जनरेशन बोलते हैं कि इज द लकीएस्ट वन, यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर born इन दैट era वेयर कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु बोथ हैव कम। सो चैतन्य, वी आर द लकीएस्ट वंस कि जिन्हें ये नाम संकीर्तन करने की हमें ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो हम इस टाइम में पैदा हुए हैं, इस टाइम पे, इस प्लेस पे, इन सब सर्कमस्टांसेस में। सो वी आर ऑल्सो नॉट, अपने आप को वेरी फॉर्चुनेट समझना चाहिए हमें कि जो हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम ये नाम ले पा रहे हैं, राइट। अब ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज गोविंदाया। अब गोविंदाया, प्रभु जी, प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं नहीं प्रभु, बताओ। आई हर्ड इन वन ऑफ द भागवतम क्लास, मेरी आवाज आ रही है प्रभु? हाँ जी आ रही है मतलब। प्रभु, आई हर्ड इन वन ऑफ द भागवतम क्लास कि गोलोका वृंदावन में जाने से पहले हमें तीन तीन बार और बर्थ लेना होता है, इफ वी आर फुल्ली, हम फुल्ली अगर कैपेबल हैं जाने के, लेकिन उससे पहले भी हमें तीन बार जाना पड़ेगा। एक बार भू वृंदावन में जाना पड़ेगा, हाँ एक बार सेकंड मुझे ध्यान नहीं है, और प्रभु एक उन्होंने ये बताया था कि एक हमें वहां पे जाना पड़ेगा जहाँ पे कृष्ण की लीलाएं चल रही है। तो इस तरह से हाँ तीन बार हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगा, एंड हाँ देन वी विल गो टू इन द गोलोका वृंदावन, नॉट हाँ, डायरेक्टली। नॉट डायरेक्टली। सेकंड मुझे ध्यान नहीं आ रहा है प्रभु क्या था, हाँ तो भू पर वृंदावन, भू वृंदावन वही है ना जो ये यहाँ पर हमारे वृंदावन में है, जो जहाँ राइट जो ये वाला वृंदावन है, पहले हम जहाँ बर्थ लेंगे एंड देन एक बार हम वहां बर्थ लेंगे जहाँ कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, मतलब हाँ कृष्ण जहाँ पर है। बिकॉज हाँ वहां जाने के लिए हमें वो, हम पूरा वो होने चाहिए, पूरा सर्विस से हर तरीके से हम तैयार होने चाहिए, एज आई हाँ रिमेम्बर। हाँ करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली। तो कृष्ण की लीला जहाँ पे किसी भी यूनिवर्स में, मटेरियल वर्ल्ड में जहां पर भी चल रही होगी, विल गो देयर, विल परफॉर्म आवर पास टाइम ओवर देयर, विल सी कृष्णा एंड गोपा गोपियां बनेंगे, एंड वंस वी लर्न कि अच्छा हाउ इट वर्क्स, देन विल गो देयर, राइट। अगर इसी ऐसी कॉन्शियसनेस में ही चले जाएंगे वहां पे कोटे कोटे में, एक्चुअल में वो वहां जाके देखेंगे ये क्या हो रहा है भाई, हम तो वही ठीक थे। तो या, यू राइट माता जी, थैंक यू। या, सो द नेक्स्ट वन इज गोविंदाया। अब गोविंदाया के दो मतलब निकलते हैं। गो, गो इज, गो जो है इसमें दो दो शब्दों के वो करता है। एक तो योर सेंसेस, गो को बोलते हैं सेंसेस। सो जो गिव्स प्लेजर टू योर सेंसेस, वन इज दैट, and the other is go means cows. So one who gives pleasure to the cows. तो cows, ये जो गोविंदा, गोविंदा नाम पड़ा है, ये किसी को पता है कैसे पड़ा है? कृष्ण का नाम गोविंदा किसने रखा? इसके पीछे वो जो गोवर्धन
लीला की स्टोरी है ना, जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया तो सब कुछ उठा लिया, इंद्र का घमंड टूट गया। अब क्या हो रहा है कि अब इंद्र जो है वो डर रहा है कृष्णा के पास जाने से, माफी मांगने से। उसको पता है कि अब मैंने बहुत गलत काम किया है, 7 दिन जो मैंने ये जो कांड किया है, तो उसके बाद वो डर रहा था। तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने सुरभि काव को लिया, सुरभि काव को लेके उनके पीछे उनकी आड़ में वो गया, सुरभि काउस की आड़ में गया कि भगवान जो है वो काउस को देख के थोड़े शांत हो जाएंगे, अगर वो गुस्से में भी हैं तो मैं बच जाऊंगा। तो फिर वो उस सुरभि काउस का उसने मिल्क निकाला, उसने अभिषेक किया। तो फिर उसने, इंद्र ने दिया था ये नाम कृष्णा को गोविंदा, राइट, जो काउस को प्लेजर दे। तो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड हिज नेम। तो एक तो हो गया कि जो काउस को प्लेजर देते हैं। सेकंड इज, इसमें जो मीनिंग निकल रहा है कि हु गिव्स द प्लेजर टू योर सेंसेस। वो आगे आगे नेक्स्ट वर्स में भी आएगा कि सेंसेस को वो कैसे प्लेजर देते हैं। थर्ड मीनिंग क्या निकल रहा है, गोविंद आया। इस इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नंद गोप कुमार आया के साथ गोविंद आया लगा हुआ है। तो ये जो कुमार है, सॉरी, ये जो नंद गोप है, काउहर्ड मैन, नंदा एंड गोपा, नंद अलग से गोपा अलग से। तो ये जो काउहर्ड मैन है, मैन और वुमेन, गोप और गोपियां, उन सब की इंद्रियों को खींचा हुआ उन्होंने। सो गोप और जो गोपियां थे व्रज भूमि के, दे डू नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, दे वांट टू टॉक अबाउट कृष्णा। जब कृष्णा बाहर वो गो चराने चले जाते थे सुबह, तब वो कृष्ण कथा ही करती थी सारी गोपियां। ठीक है, दे वांट टू सी कृष्णा, दे वांट टू सर्व कृष्णा। सारी की सारी इंद्रियां कृष्ण भगवान ने उनकी खींच रखी थी। दैट इज वाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड गोविंदाया, गोविंदा। राइट, सो दैट्स द थिंग। राइट, एक एक पॉइंट मैं बताना भूल गया प्रेयर्स को लेके, कि अब ये जो प्रेयर्स हम कर रहे हैं, राइट, तो अगेन कमिंग बैक टू द प्रेज करने वाली प्रेयर्स, अब इट विल, आपका रिलेशन, हमारा रिलेशन कैसे और बढ़ेगा जब हम इस प्रेयर को ऐसे ऐसे करेंगे। लेट मी देयर फोर ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस ऑन टू यू, नॉट ऑन टू द लॉर्ड। लॉर्ड तो क्या हो गया, थर्ड पर्सन में बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑन टू द लॉर्ड। क्यों, कुंती ने बोली है तो ऑन टू द लॉर्ड? नो 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 नो, we should recite these prayers, that is fine as it is, but internally we should also meditate as if we are directly praising him in first person. Therefore I offer my respectful obeisances unto you. You have become the son of Vasudev, the pleasure of Devaki. You are the enlivener of the cows and the senses, right? तो अगर हम फर्स्ट पर्सन में प्रेज करेंगे कृष्णा की, दैट विल मेक अवर बॉन्ड स्ट्रोंगर। तो वो पर्सनल चीज रहेगी, वो ड्राई सा नहीं रहेगा। मेरे को लगेगा किसी, हाँ भाई कोई है कृष्णा उसके बारे में प्रेज कर रहे हैं, नो। फर्स्ट पर्सन में प्रेज करेंगे, डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। और डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए उन्होंने कितने कितने रूप बनाए हुए हैं अपने। हमारे साथ वो लड्डू गोपाल के रूप में भी आते हैं, राइट। सो लड्डू गोपाल, अब मैं और दीपक प्रभु कल ही बात कर रहे थे कि लड्डू गोपाल, अब दीपक प्रभु 2 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ के वो नहला के सब कुछ खाना, 3 बजे उनको नहला धुला के बिठा के भोग भी लगा देते हैं। एंड मैं उनसे बात करा तो मैंने कहा हम तो आराम से उठाते हैं, मैं कई बार जल्दी उठ भी जाऊं गलती से, तो मुझे होता है यार सोने दो, बच्चा है अभी, है ना, क्यों उठाना है। तो उठाने के बाद साक्षी भी बोलती है कि नहीं, उनको उठा के अभी बैठे रहने दो, एकदम से मत नहलाओ। सो बट दीपक प्रभु ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, उन्होंने बोला कि जैसे और बच्चे अपने घर के माहौल में ढल जाते हैं, ऐसी कृष्णा है जो कि हर एक घर के माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। अब मेरे घर का कुछ और है सिस्टम, आपके घर का कुछ और होगा, किसी और के घर का कुछ और होगा, एंड कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग विद ईच वन ऑफ अस डिफरेंटली। एंड इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट हैप्पी, ही इज हैप्पी एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में हैप्पी है भाई मैं उनको जल्दी उठाता हूँ, या आपके घर में हैप्पी नहीं है वो आप लेट उठाते हो। ही इज हैप्पी एवरीवेयर, ही इज एडजस्टिंग एवरीवेयर। वेयर एज हमारी हम अपनी वाइफ, अपनी हस्बैंड के साथ नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, ये हालत हो रखी है हमारी। तो कृष्णा सिखाते हैं हमें कि कैसे एडजस्ट होना चाहिए हमें, राइट।
और कैसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए। सो कुंती महारानी इज बेसिकली ग्लोरीफाइंग दैट एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट लॉर्ड कृष्णा आप देवकी के भी पुत्र हो, वसुदेव के भी हो, गोपियों से भी हो, काउस के साथ भी, हर एक के साथ आपकी रेसिप्रोकेशन है, हर एक के साथ आपका डिफरेंट काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप है, राइट? सो आई थिंक दैट्स दैट. Any questions, comments? Otherwise, we'll move on to the next one. ये माता जी ने बोला कि पहला वाला भू वृंदावन वो क्या है? भू वृंदावन इज यही जो मटेरियल वर्ल्ड में वृंदावन है, जो कि एंड एट दैट वृंदावन में पैदा हो गए जब कृष्णा का पास टाइम चल रहा होगा वृंदावन में. मुझे भू लगा कि वृंदावन इज इन द मटेरियल वर्ल्ड. मुझे लगा ये वृंदावन नहीं नहीं प्रभु, हम्म. प्रभु ये ना इसी वृंदावन के अंदर जब कृष्णा का पास टाइम नहीं चल रहा होगा, कृष्णा का पास टाइम चल रहा होगा, वो भी एक बर्थ होगा, पर एक बर्थ इसी वृंदावन के अंदर होगा हमारा। जब कृष्णा का वहां पास पे टाइम नहीं हो रहा होगा. नहीं नहीं हो रहा होगा तभी भी प्रभु, अच्छा. क्योंकि वो वृंदावन एंड देन एक बार तब होगा जब कृष्णा का पास टाइम चल रहा होगा। और हम्म. एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा प्रभु, उन्होंने एक और कौन सा बोला था? ओके. इसमें से तीन बताए थे उन्होंने। अभी कुछ मुझे टाइम पहले प्रभु भागवतम क्लास में डिस्कस हुआ था, आई थिंक 10-15 डेज की बात है प्रभु। I'll सर्च इट कि प्रभु ने क्या बोला था। वो कोई नए ओके. प्रभु आए थे बाहर अच्छा. से एंड देन ही गिव दैट क्लास। ओके. अगर ये वृंदावन में भी होता है तो फॉल डाउन के चांसेस तो 99% है ना, इसलिए मैं पूछता हूँ। क्योंकि ये तो वृंदावन में भी देखो चोर तो है ही है अभी भी। हाँ हाँ, एग्जैक्टली. तो फिर एग्जैक्टली. तो फिर अगर यहाँ पर ही वापस जन्म लेंगे तो फिर आई डोंट थिंक सो कि मैं तो जा पाऊंगा। ये क्वालिफाइड हो गया तो वो वापस से क्वालिफाइड नहीं कर पाऊंगा। बट प्रभु आप देखो ना, आप वहां पर क्वालिफाइड ऑलरेडी, आपकी कॉन्शियसनेस ऐसी होगी, पिछले जन्म के संस्कार आपके साथ जाएंगे, प्रभु जी राइट? लेकिन माया भी उतनी साथ में ही होती है ना। माया तो है ही है, बट आपके संस्कार आपको गलत नहीं जाने देंगे. अब आपके साथ, अब इस जन्म में भी जो आपके संस्कार आपके साथ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ के क्लासमेट्स, आपके साथ के लोग, आपको गलत बैड कंपनी नहीं मिली होगी, बट यू डिड नॉट चूज देम, राइट? आपकी क्लास में हर एक तरह के बंदे होते हैं ना, आपके ऑफिस में भी हर तरह के बंदे होते हैं, बट यू प्रेफर नॉट टू चूज देम, यू चूज द राइट पीपल बेस्ड ऑन योर कॉन्शियसनेस. सो वो बात बहुत ही रेयर होगा कि जो डाउनफॉल, मुझे तो नहीं लगता कोई शास्त्र में ऐसी कोई होगी. भरत महाराज का आप कहोगे कि वो फॉल डाउन करके भाव प्लेटफॉर्म से, बट अगर आप देखो नेक्स्ट बर्थ में जब वो हुए तो उनकी कॉन्शियसनेस, बॉडी कोई भी मिली हो, बट कॉन्शियसनेस में 1% का डाउनफॉल नहीं था. कॉन्शियसनेस वो स्टिल वो हिरण बन के वो कृष्ण कथा ही सुनते थे सेजिस के पास बैठ के. इन द नेक्स्ट बर्थ ही गॉट इट, ह्यूमन बर्थ, एंड ही गॉट द लेसन एज वेल, राइट? जड़ भरत बने थे तभी वो, compliant with everything, no talking, no prajalpa, nothing, right? So yeah, you are right कि chances are there, but आपकी consciousness और आपने इतनी भक्ति करी है तो कृष्णा कहीं ना कहीं he'll protect you. वो बोलते हैं ना कृष्णा भगवत गीता में भी, हे अर्जुन जाके बोल दो my devotee will never perish. So declare that my devotee will never perish. And he asked Arjuna to do so. He did not say himself. उनको पता है मेरी बात पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं तो रणछोर हूँ, मैं तो झूठ भी बोल दूंगा, माखन चोर बोलते हैं लोग, मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरी डिवोटी की बात पे डेफिनेटली विश्वास करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट चलते हैं, टेक्स्ट 22. नमः पंकजानाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजा ग्रहे. My respectful obeisances unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as the lotus, and whose feet are engraved with lotuses. Purport. Anyone wants to read? Here are some of the specific symbolic marks on the spiritual body of the personality of Godhead, which distinguish his body from the bodies of all others. They are all special features of the body of the Lord. The Lord may appear as one of us, but he is always distinct by his specific bodily features. Srimati Kunti claims
herself unfit to see the Lord because of her being a woman. This is claimed because women, Sudra, the laborer class, and the Dvij or the wretch descendant of the higher three classes, are unfit by intelligence to understand the transcendental subject matter concerning the spiritual name, fame, attributes, form, etc. of the Supreme Personality, Supreme Absolute Truth. Such person, although they are unfit to enter into the spiritual affair of the Lord, can see him as Archvigra who descend to the material world just to distribute favors to the fallen souls, including the above mentioned woman, Sudra, and Dvijbandhus. What just to because such fallen soul cannot see anything beyond matter, the Lord concedes to enter into each and every one of the innumerable universe as the Garbhodaksha Vishnu, who grows a lotus stem from the lotus-like depression in the center of his transcendental abdomen. And thus Brahma, the first living being in the universe, is born. Therefore, the Lord is known as the Pankaj, Pankajanabi. The Pankajanabi Lord accept the Archvigra, his transcendental form, in a different elements, namely a form within the mind, a form made of wood, a form made of earth, a form made of metal, a form made of jewel, a form made of paint, a form drawn and on a sand, etc. All such form of the Lord are always decorated with garlands of lotus flowers, and there should be a soothing atmosphere in the temple of worship to attract the burning attention of the non-devotees always engaged in material wranglings. The meditators worship a, a form within the mind. Therefore, the Lord is merciful. Even the woman Sudra and Dvijbandhus provided they agree to visit the temple of worship in different form of made for them. Such temples visitors are not idolaters as alleged by some men with a poor fund of knowledge. All the great acharyas established such temples of worship in the places just to favor the less intelligent, and one should not pose himself as transcending the stage of temple worship while one is actually in the category of the Sudra and the woman or less. One should begin to see the Lord from his lotus feet, gradually rising to the thigh, waist, chest, and face. One should not try to look at the face of the Lord without being accustomed to seeing the lotus feet of the Lord. Srimati Kunti, because of her being the aunt of the Lord, did not begin to see the Lord from the lotus feet because the Lord might feel ashamed, and thus Kunti Devi, just to save a painful situation from the Lord, began to see the Lord just above his lotus feet, eye from the waist of the Lord, gradually rising to the face and then down to the lotus feet. In the round, everything there is in order. थैंक यू हरे कृष्णा. सो इसमें अगेन बड़ा राइमिंग सा वर्स है ना, नमा पंकजाया नमा पंकजा नमा पंकजा नेत्राया. सो एक एक बॉडी पार्ट को अब वो नमन कर रही है कुंती महारानी, और हर एक बॉडी पार्ट को वो किससे कंपेयर कर रही है? लोटस फ्लावर से. अगर आप देखो, लोटस फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. वैसे रोज भी कई लोग बोलते हैं, बट लोटस की जो फॉर्मेशन है और उसकी जो सबसे सुंदर फ्लावर लोटस फ्लावर है. तो सबसे पहले वो बोलती है नमा पंकजा नाभाया. सबसे पहले उनकी नाभि को देखकर उनको बोलती है कि पंकज जैसी आपकी नाभि है. राइट. अब जो प्रभुपाद यहाँ पे इस कोट में पॉइंट जो आ रहा है कि हमें यही सिखाया जाता है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हिज लोटस फीट. पंकजान न ग्रहे विच इज हिज फीट. तो पैरों से देखना, जो दर्शन पद्धति है वो ये है कि पैरों से देखो, फिर देन लेग्स, देन थाइज, देन वेस्ट, देन चेस्ट, एंड देन फाइनली हिज लोटस फेस. बट यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट नाभि को देखा. अब अगर हम भी कभी जाएं टेम्पल में, तो हम जब एंटर करते हैं, हर एक का अपना अपना है, बट जब हम एंटर करते हैं तो हमारे कोई लोग गौरा निताय पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं सबसे पहले,
यहाँ कोई लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखते हैं, कोई राधा रानी को पहले देखता है, कोई कृष्णा को पहले देखता है, कृष्णा का भी कोई पार्ट पहले देख लेता है. But then, once he stands, then he starts looking from feet downwards and upwards. But so this is kind of a first glance जो कुंती महारानी की पड़ी. एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो आचार्यज ने नीचे कमेंट्री करी है, उसमें प्रभुपाद ने कमेंट्री करी है, उसमें उन्होंने ये भी जस्टिफाई कर दिया कि बिकॉज वो उनकी आंट है, ठीक है, इन रिलेशनशिप, इन इन दैट सेंस कि अब उनकी बुआ डायरेक्ट, वो अगर डायरेक्ट चरणों से ही स्टार्ट कर देंगे तो कृष्णा एम्बेरस फील कर सकते हैं. तो कृष्णा को एक एम्बेरसिंग सिचुएशन में ना डालने के लिए उन्होंने पहले नाभि को किया, एंड देन मालिनी इज गार्लैंड को किया, फिर फेस को किया नीचे. गार्लैंड इज चेस्ट पे है, तो उन्होंने शी स्टार्टेड फ्रॉम नेवल टू चेस्ट टू फेस एंड देन टू द फीट. सो इन द राउंड, प्रभुपाद, दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज सेइंग इन द एंड, राइट. सो इन द राउंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. तो फीट के बाद फिर वो आ गए. सो इन राउंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सो वी नीड नॉट वरी मच अबाउट दैट. बट द पॉइंट विच इज कमिंग हियर इज कि कुंती महारानी देखो कितनी डिटेलिंग में वो कृष्णा को देख रही हैं और उनके एक एक बॉडी पार्ट को की प्रेज कर रही हैं. सो द लेसन फॉर अस इज कि वी शुड ऑल्सो लुक एट कृष्णा इन डिटेल. डिटेल में देखो. हम क्या है कि रोज देखते हैं, हाँ ठीक है वही तो है, हम उस ग्रुप में भी एडेड हैं वो जो भेजते हैं. मैं तो, इफ आई कन्फेस, मैं तो रोज देख भी नहीं पाता हूँ. इतना अनफॉर्चुनेट है हम. हर रोज वो आती है एंड वी डोंट हैव टाइम टू लुक एट दैट. एंड आई, जब मम्मी बीमार थे तो आई मेड श्योर के मैं देखूं और मैं मम्मी को भी दिखाऊं. बट स्टिल इतने ज्यादा कंडीशनड हैं हम. मैंने दिखाया बट डेली वो भी नहीं हो पाया. लुक एट दोज पीपल जो हर रोज खींच के उसको डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं. एंड लुक एट अस, लुक एट मी, जो देख भी नहीं पा रहा हूँ उसको. दिस इज द सिचुएशन. तो डिटेलिंग में देखना तो बहुत बहुत दूर की बात है, राइट. तो कमल का पार्ट, और अभी वृंदावन इस्कॉन जब मैं गया तो वृंदावन में इस्कॉन में काफी बार मैं दिन में ना चक्कर लगाता था इस्कॉन के, क्योंकि वहीं घूमते रहे. महाराज, गुरु महाराज वहीं थे, गुरु माता वहीं थे, तो बस मंदिर में मैं इस्कॉन में कम से कम 3-4 बार जाता था. अब मैं 3-4 बार गया हूँ, वहीं पर डीटीज तो वहीं पर खड़े हैं. अब मैं 3-4 बार गया हूँ तो 3-4 बार जाके मैंने, हर बार मैंने जाके दंडवत, और हर बार जाके मैंने ऐसे नहीं देखा है. और नेक्स्ट डे मैं मंगला में आया हूँ और 100 भी कम बोलूंगा मैं, 500 लोग आए हुए हैं. जब 500 लोग आए हुए हैं तब मैं जाके ऐसे ऐसे देख रहा हूँ. मैंने कहा यार मैं क्या, मतलब क्या है ये, कितनी भेड़ चाल है. मतलब कि जब और लोग देख रहे हैं तब मेरे को देखना है, जब और कोई नहीं देख रहा है तब खड़े हैं वहां पे तब मुझे नहीं देखना है, तब मैं ऐसे ही निकल के जा रहा हूँ. दिस इज माई कॉन्शियसनेस. तो अगर कृष्णा से एक्चुअली प्यार है तो एवरी टाइम वो बोलते हैं ना दंडवत, जैसे ही तुम कृष्णा को या गुरु को देखो उसी टाइम तुम्हें डंडे की तरह गिर जाना चाहिए. मंदिर 4 बार जाओगे, अब 4 बार नहीं गिरोगे आप, दंडवत 4 बार नहीं करोगे. एक एक पहली बार तो करेंगे बड़े ऐसे ऐसे करके, दूसरी बार ऐसे सिर मार देंगे, चलो हो गया. यस, दिस इज व्हाट वी शुड लर्न, टू सी कृष्णा एंड टू सी इन डिटेल. देखेंगे भी नहीं जो सामान लेने को टाइम आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु, क्या कह रहे हो? तो हम देखेंगे ही नहीं. हम जितना जो सामान लेने आए हैं टेम्पल में वही वो लेके निकल जाएंगे. हाँ हाँ, बीट बैग पड़ा ऊपर से, खा खा के आए हैं, प्रसादम खा के आए हैं, बीट बैग पड़ा वहां से उठा के, ओके बाय बाय सी यू. इट्स लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट अ लर्निंग फॉर अस कि लुक एट कुंती महारानी, कितनी डिस्क्रिप्शन में एक एक पार्ट को वो देख रही हैं और उसको ग्लोरीफाई भी कर रही हैं. और हुज ग्लास इज एज कूल एज द लोटस. तो उनके तरफ देखने से हमारी इंद्रियों को सुख मिल रहा है, हमें सुख मिलता है. दैट्स व्हाई वी लुक एट कृष्णा, राइट. दैट्स व्हाई हम मंगला जाते हैं. एवरीवन वांट्स टू गो टू मंगला, क्योंकि सुबह सुबह देख के एकदम, जब कर्टन्स खुलते हैं एकदम फेस पे ऐसे स्माइल आ जाती है, राइट. उनको उनके फेसेस को देख के, डीटीज को देख के, राइट. हम ये कृष्ण कथा यहाँ बैठ के क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं वी लाइक इट. कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो प्यार है ना कृष्णा के लिए, ठीक है. वी कांट डिनाई दैट फैक्ट.
थोड़ा सा तो है तभी हम सुन रहे हैं, अगर ना हो तो वी वोंट बी। फिर हमारे फेस पे स्माइल क्यों आए मुझे बताओ। अगर हम मंगला आरती करके जब वो सुबह हम डेटीज को देखते हैं तो हमारे फेस पे स्माइल नहीं आनी चाहिए, राइट। तो क्लास में इसलिए बैठता हूँ कि मैं ये और भटकना स्टार्ट ना कर दूं। ना दैट इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो कि एटलीस्ट जब हम डीटीज को देखते हैं तब थोड़ी सी स्माइल तो आती है फेस पे। सो व्हाट इज दैट, दैट इज द लव, राइट। जब तुम किसी अपने को देखते हो तो हग करते हो, मिलते हो, फेस पे स्माइल आती है। जब ये किसी जिसके साथ आपकी नहीं बनती, उसको देख के आपके फेस पे स्माइल आएगी कभी? नहीं आएगी। उसको हग करोगे कभी? नहीं करोगे। सो फेस पे स्माइल तभी आती है जब किसी को आप थोड़ा सा भी प्यार करते हो। अब जन्माष्टमी पे मैं मंगला आरती पे गया था चंडीगढ़ इस्कॉन में। सो देर इट्स अ बिग हॉल। सो देर वर अगेन लाइक क्लोज टू आई वुड से 300 400 पीपल होंगे। तब लाइट्स ऑफ थी तो कर्टन्स खुले एंड एवरीवन स्टार्ट स्क्रीमिंग। मतलब एक कोई प्लान, अब 500 लोग प्लान थोड़े ना कर सकते हैं कि हमने चीखें मारनी है। उन्होंने देखा, वो मूड था उस टाइम पे, वो डीटीज वर रेसिप्रोकेटिंग सो वेल। 4 बजे सब लोग सीटियां मार रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, हरी बोल कर रहे हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट फर्स्ट ग्लांस से, right? So that is what Kunti Maharani is saying कि when I look at your mala, your nabhi, your feet, I feel so happy, and I want to pay that obeisances onto those. All right, so we'll stop here और we'll see if, the key lessons तो आज के मैं I'll repeat है ना, आज summarize कि हमें क्या करना है कि the whole purpose of these prayers is to establish that relationship with Krishna by doing the prayers, and in doing the prayers अगर हम फर्स्ट पर्सन में करेंगे that will be more effective। वो ज्यादा हमारा ड्राई नहीं रहेगा, थोड़ा और पर्सनल हो जाएगा। एंड सेकंड इज वी शुड गो इन डिटेल। जिस बंदे को आप प्यार करते हो उसकी आप डिटेलिंग नोट करते हो, ठीक है। एंड आफ्टर नोटिंग द डिटेल्स यू प्रेज दैट पर्सन। अब कल ही मैंने अपने जूम पे, बॉस था मेरा, उसने कुछ सालों बाद उसने टी शर्ट चेंज करी होगी, नहीं तो वो ब्लैक कलर की टी शर्ट डालता है, उसने कुछ डिफरेंट कलर की टी शर्ट डाली। तो मैंने उसे चैट पे लिख दिया कि यू आर लुकिंग फ्रेश। इतना खुश हुआ, उसके फेस पे स्माइल आ गई एकदम। आज आज वो और नया कपड़ा डाल के आया, आज वो क्रिसमस वाली शर्ट डाल के आया है क्योंकि मैंने उसकी प्रेस कर दी थी कल, राइट। मतलब सो बस करो। मैं हैरान। उसके बाद दोबारा आफ्टरनून में मीटिंग हुई तो दोबारा उसने ब्लैक शर्ट डाली। मैंने कहा अब क्या हो गया, तू वापस अपने काले कपड़ों में आ गया? कहता कहता यार बस अब उसमें गर्मी लग रही थी मेरे को इतने ही लोग उसके हैं प्रेस के। तो डिटेलिंग में अगर तुम जाते हो, विच मीन्स यू लव दैट पर्सन और यू हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट पर्सन विद दैट पर्सन, राइट। अब वाइफ आके पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, और कितने सारे जोक्स है ना, हस्बैंड बिना देखे बोल देता है बहुत अच्छी लग रही हो तो वाइफ उसमें चिढ़ जाती है। सो दैट इज व्हाट। तो देखे बिना वाइफ बोलती है, बिना देखे तुमने बोल दिया बहुत अच्छी लग रही है। तो वाइफ ऑल्सो एक्सपेक्ट्स, हस्बैंड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स उससे जिससे तुम प्यार करते हो कि उसकी तुम छोटी छोटी डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स नोट करो और उनकी प्रेज करो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं विच ब्रिंग अस क्लोजर टू कृष्णा। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, करेक्शंस? ये जो हमने वर्स पढ़ा है ना, इसमें जो टीटी के 8 फॉर्म्स बताए ना, मेटल, वुड, हम्म। सैंड, तो वो हम्म। हमें बताया था। मेरे क्लास जो क्लास हुई थी, कोर्स हाँ हुआ हाँ था हाँ हाँ। कि ये डीटी वर्शिप तो 9 में से एक डिवोशनल सर्विस है। तो हम्म। अभी के लिए वही उससे ही स्टार्ट होता है सारा कुछ, डीटी वर्शिप से ही कुछ मैं भूल गया, लेकिन हाँ बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है। ये डीटी वर्शिप 9 डिवोशनल सर्विस सर्विस में से एक है, हाँ और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आई थिंक दीपक हाँ प्रभु ने बताया था ना, वो 5। हाँ, ABCD ना। हाँ हाँ हाँ। ABCD से याद रखो ना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भागवतम, चैंटिंग, D से DT वर्शिप, एंड वेयर यू विल डू ऑल 4 थिंग्स इन मथुरा, मथुरा वास।
ये उसमें से हाँ, डीटी वर्शिप अगेन, दैट्स व्हाट, मैंने जो आज लड्डू गोपाल की एग्जांपल बताई कि डीटी वर्शिप से एक्चुअली तुम्हारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। जब तुम उनके कपड़े पहनाते हो, जब तुम उनको नहलाते हो, तब वो जाके रिलेशनशिप आता है ना। नहीं तो ड्राई चैंटिंग कर रहे हो, ड्राई सब कुछ कर रहे हो। सो या, यू आर राइट प्रभु। से ज्यादा एडवांस एडवांस जल्दी बनते हैं। पहले हाँ प्रोग्रेस नहीं हो सही, हमारा जो ग्रोथ होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ फास्ट होता है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज वेल। जगन्नाथ राम प्रभु इस पे इतनी बजाते हैं ना। वो बोलते हैं कहते जो ऑल्टर पे जाके खड़े होते हैं ब्राह्मण दीक्षा लेकर, ठीक है कि अब मैं ऑल्टर पे आ गया हूँ, उनका पर्पस ही यही होता है कि बस मुझे ऑल्टर पे जाना है और वो करना है। दैट इज ग्लोरियस, दैट इज नोट, नो वन टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट। बट दे आर सेइंग कि सिर्फ अगर वही करोगे एंड यू आर नॉट प्रीचिंग, तो आपकी क्या है कि ईगो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एंड यू विल, दिस इज नॉट गुड। खाली डीटी वर्शिप इज नॉट गुड, along with that all the ABCDs plus preaching. So preaching will keep you grounded and yeah. So yeah प्रभु, डीटी वर्शिप बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वी ऑल शुड एम फॉर डूइंग इट एंड डूइंग इट करेक्टली। एंड मैं भी वो कोर्स करना चाह रहा था, बट तब मैं अभी इंडिया से आया ही था। आई थिंक एक क्लास मेरी मिस हो चुकी थी, तो दूसरी क्लास में मैं आया था। सो बट आई वांटेड टू डू दैट कोर्स एंड विल डू इट मे बी नेक्स्ट टाइम। एंड आई वुड रिकमेंड everyone who can do should do that. Good. All right. Then ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। साम्य भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।